براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی ٹی وی پر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ خدا کی باتیں بر وقت رہنمائی ہیں، اور اس رہنمائی سے ہمارے لیے تاریکیاں دور ہوتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور روشنی ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس وقت جس صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے، بہت اہم موضوع، قائدین کی پہچان اسلام میں اور مسیحیت میں کیسے کریں۔ جو قائدین خدا کی طرف سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، کس طرح سے جانیں گے؟ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، اور آپ سب کو بھی پروگرام کے شروع میں ہی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی اسکائپ کے ذریعہ سے، ٹیلی فون کے ذریعہ سے، SMS کے ذریعہ سے شریک ہو سکتے ہیں، اور جلد ہی ہم آپ کو یہ سہولت بھی دیں گے کہ آپ واٹس ایپ یا ویبر کے ذریعہ سے بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں گے۔ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو ایک نبی جس کا نام یرمیہ، اس کی کتاب اور اس کی خدمت بہت اہم ہے اس موضوع کے تعلق سے، چونکہ جب وہ تقریباً 7ویں صدی قبل از مسیح میں خدمت کا آغاز کرتا ہے تو اس کا جو بلاوا ہے وہ بادشاہوں، حکمرانوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے، کلام خدا میں سے وہ جب بات کرتا ہے تو وہ آگاہی بھی ہے، وہ تنبیہ بھی ہے، وہ تربیت کی راہ پر آنے کی ایک صدا، ایک پکار بھی ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ علم الہی کے ایسے خزانے ہیں جو تہ در تہ چھپے ہوئے ہیں، اور جو ہی ایک تہ کے بعد دوسری تہ کھلتی ہے، باتیں ہم پر عیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم پہچان کیسے کریں، اپنا تجزیہ کیسے کریں، اپنے چوگرد کے ماحول میں امتیاز کیسے کریں۔ یہ کلام ہمیں اس قابل کرتا ہے، ایسی حکمت اور دانائی تک لے آتا ہے جہاں ابہام ختم ہوتے ہیں، بے وقوفیاں جاتی رہتی ہیں، نادانیاں جاتی رہتی ہیں، اور ہم دانائی اور شعور کی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو خدا کے دل کی خواہش ہے۔ پہلی آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ یرمیہ کی کتاب ہے اور اس کا 6 باب اور 10ویں آیت ہے، اور یہ آج اہل مسیحت، اہل اسلام اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں، پاک نہیں ہیں، اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ موضوع جب باتیں کھلیں گی تو بہت سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، وہ حقارت سے بھر جائیں گے،
और मैं आज ये बताना चाहता हूं कि अगर वो हकारत से भरते हैं तो कोई नई बात नहीं, अगर वो इस कलाम को कबूल नहीं करते तो नई बात नहीं। और इसी बाब में वो लोग जो हकारत से भर जाएंगे, दुश्मनी से भर जाएंगे, रियाकारी से भर जाएंगे, वो पहले भी कुछ भरे हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, जो भरेंगे उनकी बात कर रहा हूं। उनका अंजाम भी इसी बाब में पढ़ लीजिएगा कि उनका अंजाम क्या होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि खुदा के कलाम को सुनने के लिए आप अपने घर में बैठे हैं, मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, चर्च में हैं, गुरुद्वारे में हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, खुदा के कलाम की आवाज के सुनवा हो जाइए। अगर आपने खुदा की बरकत का तजर्बा करना है तो फिर जरूर है कि हमारे कान सुनने के लिए तैयार हों, हमारे दिल कबूल करने के लिए तैयार हों, तो फिर ही हम बाबरकत हो सकते हैं। खुदा के वादों की तकमील मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं होगा, बल्कि हाल में हम उसकी ताबीर देखेंगे। चूंकि खुदा के वादे सच्चे हैं, बरहक हैं, ये हो नहीं सकता कि उसके वादे पूरे ना हों। तो कायदीन के ताल्लुक से बात करेंगे। चंद आयात आपके सामने रखूंगा कि खुदा का कलाम कायदीन को क्या कहता है, क्या कहकर मुखातिब करता है, वो हैं कौन। आज की जो तस्वीर है वो भी आपके सामने है। पहली आयत देखते हैं। बाइबल कायदीन को क्या करार देती है, पैदाइश की किताब है, इसमें हम देखते हैं। स्लाइड दिखा दीजिए। और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे बरकत दूंगा और अपने खादिम इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। खादिम से मराद नौकर, खिदमत करने वाला, और इसमें खिदमत का जो ताल्लुक है वो खुदा और इंसान दोनों की खिदमत इसमें शामिल है। अगली आयत देखें। इब्राहिम खुदा के बंदे का जिक्र हमने देखा है। देखें फिर एक और जो कायद है खुदा की तरफ से, और ये खरूज की किताब है। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदामंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदामंद खुदा से डरे और खुदामंद पर और उसके खादिम मूसा पर ईमान लाए। मूसा खुदा का खादिम। एक और आयत देखते हैं, यहां पर भी देखते हैं, सैमुएल की किताब है। तब फलस्ती अमीरों ने कहा कि इन अबरानियों का यहां क्या काम है। अकीस ने फलस्ती अमीरों से कहा कि ये इसराइल के बादशाह सौल का खादिम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों मेरे साथ है, और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। सौल का खादिम दाऊद। तीन बड़े नाम हमने देखे और इनको नौकर खादिम कहा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अबरानी में पढ़ लीजिए, यूनानी में पढ़ लीजिए, अरामी में पढ़ लीजिए, अरबी में पढ़ लीजिए, उर्दू में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और अगर आप कहें ये तफसीर दुरुस्त नहीं है तो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हर हफ्ते लाइव होते हैं, कॉल कीजिए। इसी ताल्लुक से कुछ और बातें भी हैं। खुदावंद कहता है कि मैंने इन्हें नहीं भेजा। वो लीडर्स, वो कायदीन जो इस मनसब पर आ जाते हैं कि हम कायद हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनको नहीं भेजा। तो पहचान कैसे करें? देखते हैं यिर्मयाह की किताब में से। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूं। बड़े सख्त अल्फाज हैं, गौर से सुनिएगा। जो झूठे ख्वाबों को नबुवत कहते और बयान करते हैं और झूठी बातों से लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते, लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए उन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है वो लोग वादे करते हैं कि फायदा होगा,
आपके लिए बरकत होगी, आप ईमान रखें। लेकिन यहां पर लिखा है वाज़े, पहचान कैसे करेंगे? कुछ फायदा नहीं, कोई बेहतरी नहीं, कोई तरक्की नहीं। शायद उनकी अपनी तो तरक्की होती है। मुझे किसी ने पूछा कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान में जो पादरी साहबान हैं या दीगर मजहबी रहनुमा हैं वो तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कलीसिया की हालत वैसी ही है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी जो अमीर हो रहे हैं आप उनसे पूछें, आप खुद तजजिया करें, आप खुद ढूंढें वजूहात क्या हैं। फायदा लोगों को, कलीसिया को, अवाम को कुछ फायदा ना होगा, वो किसी को फायदा पहुंचने भी नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए चूंकि खुदा ने उनको नहीं भेजा। एक और आयत देखते हैं। तब यर्मिया नबी ने हनन्याह नबी से कहा, ए हनन्याह अब सुन, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा लेकिन तू उन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। सच्ची उम्मीद भी है और झूठी उम्मीद भी है उम्मीद। वो कहेंगे जनाब बस उम्मीद है ये हो जाएगा, बेहतरी आएगी, लेकिन चूंकि खुदावंद की तरफ से वो कलाम नहीं होता, अगर खुदावंद कहेगा तो वो पूरा होगा, हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान ये है कि वो झूठी उम्मीदें दिलाते हैं। खुदावंद कहता है मैंने उनको नहीं भेजा। और इस वक्त दुनिया की हालत देख लीजिए, हर तरफ उम्मीद दिलाई जा रही है, लेकिन क्या वो उम्मीद भर आती है? अगली आयत देखते हैं। और उन्होंने बातिल और शगुन और झूठा शगुन देखा जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। खुदावंद फरमाता है मैंने उनको नहीं भेजा। तफसीलन हम बात करेंगे। अभी एक क्लिप देखते हैं कि उस क्लिप में ये पाकिस्तान के चैनल्स पर इस वक्त तमाम बातें आम हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सीखने के ताल्लुक से है। तो आइए देखें कुछ झलक रहनुमाई की, रहनुमाओं की, कायदीन की। क्लिप देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि यहाँ इदारे की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनकी जो तैनाती है उसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, वो सियासी मकासद के तहत है। जो बंदा इस मामले पर मेरे एक जुमला समाप्त फरमा लें, जो बंदा 10 दिन हुकूमत की काफिल ऐसी करे वो मेंबर आ जाता है। अभी अशरफी साहब बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े तड़ले के साथ कह रहे हैं कि मैंने एपीएस में ये किया, मैंने फलां मामले पे गर्दी के खिलाफ किया। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से अर्ज करना चाहता हूँ, इन्हें कहें कि मलक इसहाक के मामले में और लश्कर जंगवी के खिलाफ आप यहाँ पर जरा मजम्मती जुमले कहें। जिस वक्त लश्कर जंगवी का सरबराह मलक इसहाक उसको जेल से रिहा किया गया, उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। अशरफी साहब आप गए थे, पूरे हजारों लाखों लोगों का कातिल, आप उसको पूरे प्रोटोकॉल में लेके आए थे। ये क्या बगल में छुरी और मुंह में राम राम? एक तरफ आप दहशतगर्दों के इतने बड़े सरबराह अपना प्रोटोकॉल देते हैं और दूसरी तरफ आप हुकूमत और अफवाह किनारे लगाते हैं। ये दो नंबरियां ना दिखाएं कौम को। मुफ्ती साहब ताहिर रशीद साहब को मौका दें, आपने बहुत इल्जाम लगाए। जी अशरफी साहब। मैं इल्जामात नहीं है भाई, ये हकीकत है। जी अशरफी साहब। पहली बात ये है कि कातिल मलक इसहाक भी है और कातिल एक और भी है जिसको कत्ल के लिए फतवे देके भेजा। मलक इसहाक के गले में मैंने हाथ डाला हो, मैं मसरूद साहब आपको नहीं पूरी कौम सुन रही है, मैं चैलेंज करता हूं अगर मलक इसहाक के गले में मैंने हाथ डाला हो मुझे जनाब फौजी अदालत में ट्रायल कर दे। लेकिन अगर जाके मुमताज कादरी से पूछे सलमान तासीर के कत्ल के लिए किसने उसे उभारा, अगर वो कहे हनीफ कुरैशी ने उभारा है तो फिर इसे भी फौजी अदालत में लेके जाए। इनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है। उस गरीब ने उन्होंने फंसा दिया मुमताज कादरी को, उसको फंसा दिया। अगर जुर्रत थी तो तुम अदालत में जाके कहते कि हमने फतवा दिया को कत्ल करो। इस्लाम की बात करते हैं लेकिन मजहब के नाम पे हमने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उल्लू बनाया गया। तो क्या अभी तक हम इसी तरह इसी पाकिस्तान में अभी भी बेवकूफ बन रहे हैं इसी तरह से? गुजारिश ये है कि एक शेर बड़ा काम का है, आपने जो सवाल उठाया है कि अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब कभी बनामे वतन।
یہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کے لیے ایک بدنیتوں اور بدذاتوں پہ مشتمل اقلیت جو ہے وہ اکثریت کو کبھی وطن کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اور بیچتی ہے اور مرواتی ہے، کبھی ملک کے نام پہ۔ اچھا، تین چیزیں ہیں جن پہ کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بتائے، چونکہ وہ انسانی جبلت میں شامل ہیں۔ ماں سے محبت، ملک سے محبت اور اپنے مذہب سے محبت، اپنے عقیدے سے۔ میں نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ چند مذاہب ایسے ہیں کہ بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کسی بنائی ہوئی چیز کا، وہ مٹی کی ہے، پتھر کی ہے، کسی دھات کی ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کرتے ہیں اور دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں سے، ملک سے اور مذہب سے محبت کا کوئی نہ لے، یہ انسان کے خون میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں انسانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اگر وہ تھوڑے سے بھی مہذب ہوں، ان کو تعلیم ہو، عقل ہو، شعور ہو۔ لینن کا ایک جملہ ہے، وہ سنیں ذرا غور سے آپ، بلکہ آپ کیا، آپ نے تو سنا ہوا ہوگا، اب آپ کے ویورز کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا پریچر آف ایوری ریلیجن از اے روگ۔ بھائی جو بندہ دماغ رکھتا ہے، آنکھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سچ جھوٹ کا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات بالکل دیر سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پہ امپوز کر رہے ہیں، ان کے دروازے توڑ رہے ہیں یا دھمکیوں کے ذریعے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، دس از نان سینس۔ تو یہ انسان جو تھوڑا سا بھی جس میں میچورٹی ہو، جس کا تھوڑا سا بھی ویژن کو گولی مارے ہیں آپ، جس کی بیسک ایجوکیشن ہو، اس کو پتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا مذہب ہے، لیکن اس کو اتنا ہوش ہونا چاہیے، جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مرتے ہیں یا مارتے ہیں، وہ خود ظالم ہیں اور وہ خود قابل نفرت لوگ ہیں، چونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری محبتیں ہیں، بالکل، لیکن ماں، ملک اور مذہب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا نام لے کے مجھے بیچ جائے یا میری نسلوں کو بیچ جائے۔ بالکل، جو دل کرے اور گولی مار دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مذہب یا ملک کا نام لے کر مجھے بیچ جائے یا میری نسلوں کو بیچ جائے، قائدین کی پہچان کی بات کر رہے ہیں۔ بہت ہی سنجیدہ اور نازک موضوع ہے، لیکن کسی کو تو بات کرنا ہوگی، کسی کو تو بولنا ہوگا۔ چونکہ ہم بات کریں گے قائدین، مسیحت میں اور اسلام میں۔ مسیحت کی تعلیم پر آج بات ہوگی، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کی بات بھی کریں گے، جو اسلامی کتب میں تعلیمی باتیں موجود ہیں اس تعلق سے، تو چونکہ اسلام میں جب اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں جو رہنما ہوں گے، تو اس تعلق سے دو احادیث آپ تمام احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ضرور ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کتب ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ تو اس میں پہلی جو کتاب میں آپ تمام احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب ہے زاد راہ، اور مولانا جلیل احسن ندوی اس کے مصنف ہیں، اور یہ احادیث کی کتاب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو حدیث ہے وہ کیا کہتی ہے رہنمائی کے تعلق سے۔ چونکہ قرآن اور سنت ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں ہے طلب دنیا کے لیے علم دین کا حصول۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو حدیث ہے، یہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اور اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے، اور فتنہ یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی حوث رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔
दीन के वाकई उलमा कम हो जाएंगे और दीन के पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे। दीन को दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ा जाने लगेगा, नेक काम करेंगे लेकिन इससे मकसूद दुनिया का हसूल होगा। तो यहां पर लिखा है ये फितना आ जाएगा कि गुमराही, फितना यानी गुमराही को सुन्नत, तो बहुत ज़रूरी है। और इसकी तफसीर जो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये किताब आपके सामने है। आगाज में बताना चाह रहा हूं कि सुन्नत को ये लिखा है गुमराही समझा जाएगा, तो करने वाले कौन है? यहां पर लिखा है वो लोग। अब लोगों की पहचान जरूरी है इस हदीस की रोशनी में। किस तरह से सुन्नत में इम्तियाज करेंगे, किस तरह से लोगों में इम्तियाज करेंगे, तो ये तो हो गई बात सुन्नत की। अब दूसरी किताब है मुंतखब अहादीस, अदारा इस्लामियात कराची पाकिस्तान से है। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा जो जरिया है बयान फरमाया गया कुरान, उसके बारे में मैं यहां से पढ़ूंगा। ये सफ़ा नंबर 22 है किताब, फिर आपको बता दूं मुंतखब अहादीस सफ़ा नंबर 22, और यहां पर कुरान की बात की जा रही है। तो रहनुमाई के लिए इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आपने 2 ज़राए छोड़े। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मैं पढ़ता हूं, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, इसी तरह इस्लाम भी एक ज़माने में मांद पड़ जाएगा, यहां तक कि किसी शख्स को यह इल्म तक ना रहेगा कि रोज़ा क्या चीज़ है और सदका व हज क्या चीज़ है। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर इसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। अब ये फिर किताब बता रहा हूं, मुंतखब अहादीस है। तो 2 ज़राए कुरान और अहादीस, और दोनों मैंने आपके सामने रखे। इस पर बात करेंगे हम दूसरे हिस्से में। आज चूंकि हम बात करेंगे इस मसीहत में जो तसव्वुर है कायदीन का, वो, तो मेरे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब पास्टर परवेज साहब। पास्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत खुशी हो रही है ये फजल रबी प्रोग्राम सुनकर। जी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कायदीन इस्लाम में और मसीहत में। तो आप ये फरमाइए कि कायदीन की तारीफ क्या है, इल्म इलाही कायदीन के बारे में क्या कहता है, वो कौन है, क्या तारीफ है? फिर मैं दीगर सवालात भी आपसे पूछूंगा। डॉक्टर दानियाल, दर हकीकत कायद की जो तारीफ हमें कलाम मुकद्दस की रूह से मिलती है कि एक कायद एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स है जो लोगों की सोचों को सच्चाई की तरफ लगाता है और उन्हें मोहब्बत, मुआफी और अपनी जिंदगी की राह दिखाता है। वो उन पर अपनी सोच के असर और रसूख को और उस कायदाना सलाहियतों के वसीला से ऐसी चीजें उनके दिल में, उनकी सोच में परो देता है ताकि वो आइंदा नस्लों के लिए एक मुनासिब, इफेक्टिव कायद बन सके, कुर्बानी दे सके, मिशन की तकमील के लिए जो कुछ भी मुनासिब हो वो उस मालिक की रजा के ताबे होकर कर सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये तारीफ बयान फरमाई कि कायदीन का काम रहनुमाई करना है, और फिर आपने कहा सच्चाई की राह पर लोगों को लेकर आना, रास्तबाजी की राह पर लोगों को लेकर आना। लेकिन जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है आपके चौगिर्द और मेरे चौगिर्द और पूरी दुनिया में, वहाँ पर तो झूठ परवान चढ़ रहा है, रियाकारी का दौर दौरा है, नफ्सा नफसी का आलिम है। तो ये रहनुमा तो मौजूद हैं, फिर ये रहनुमाई कहाँ है? सर, इस पर रोशनी डालिए फिर थोड़ी सी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही डॉक्टर दानियाल सुना कि जैसे आपने बताया कि किस तरह से यिर्मयाह नबी खुदा का सच्चा नबी है और उसी जमाना में झूठे भी,
और कलाम मुकद्दस बताता है कि इस अखीर जमाना में झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे, जो आज हम अपनी दुनिया में देखते हैं। लेकिन सवाल आपका यह है, सच्चाई को जानना बड़ा जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट, जब उन्होंने लोगों को बताया सच्चाई के लिए, और कुछ लोग आ तो गए लेकिन उनके अंदर तब्दीली नहीं थी, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे और उन्होंने कहा, आए सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। जिसका मतलब यह था कि सच्चाई को कबूल करना, सच्चाई पर चलना जो है वो एक कायद की पहचान है, और उसके पैरोकारों को बिल्कुल उसकी रोशनी में पैरवी करना होगा। अगर वो नहीं करते तो वो फिर काउंटरफीट या नकली किस्म की क़ियादत होगी और नकली किस्म के पैरोकार होंगे। बात की है सच्चाई की और फिर झूठे रहनुमाओं की और खुदाई रहनुमाओं की, तो मोहतरम आप मुझे ये भी बताइए थोड़ा सा कि क्या इस वक्त जो कायदीन है बर सगीर पाको हिंद में, आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं उनके बारे में? इस वक्त कलीसियाई सियासत, प्रॉपर्टीज़ को बेचना, अपने अपने किंगडम की तामीर करना, उसकी फ़रोग और तरक्की के लिए दूसरों की टांगें भी खींचना, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना, ग्रुप्स बने हुए हैं एक दूसरे के साथ, सख्त बातें हैं, लेकिन यह सच्चाई है सर। तो इस सच्चाई के बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर दानियाल, सच तो कड़वा लगता है लोगों को, लेकिन सच्चाई के अलंबरदारों को सच बोलने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मैं बात कर रहा था, उसने उस वक्त के बादशाह के सामने कह दिया था कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं, अगरचे उसके लिए सर कटवाना पड़ा। और आज मैं जॉन दी बैप्टिस्ट को सलाम करते हुए आज ये कहूंगा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क और हमारी कौम को ऐसे कायद मिल गए हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिनका बुलावा आसमानी नहीं बल्कि वो बनावटी हैं। और आज बहुत सारे जैसे बनावटी पीर हैं, फकीर हैं, इसी तरह से बहुत सारे बनावटी बिशप साहबान जो सिर्फ टाइटल लिए हुए हैं, जो सिर्फ अपनी जात और अपने खानदान को पालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अफसोस कि ये लोग कौम के लिए ना बदनामी का बायस बनते और ना ये मसीहत पर धब्बा होते। और आज मैं बड़ी दलेरी से ये कहूंगा, मेरी दुआ ये है कि उनके ज़मीर जाग उठे और वो जाने कि उन्होंने जरिया मुआश जिस खिदमत को बनाया है वो बुलावे पे है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की कि बहुत से नाम नहाद लोग इन कलीसियाई ऑफिसेज में हैं, तो लोग तो उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, फिर लोग उनको पैसे भी देते हैं, उनके साथ खड़े भी हैं, उनके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे पैरवी जो करने वाले लोग हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बाइबल क्या कहती है उनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज ये भी बदकिस्मती है कि कुछ लोग अंधों के पीछे चलकर, और कलाम में लिखा है कि अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सर यहाँ पर मैं बात करूंगा, वो गड्ढे में गिरने वाली बात आप कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है, वो बड़े कामयाब हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, वो अंधे कैसे हो गए सर? ये तो थोड़ा सा इस बात को खोलिए। फिर लोग कहते हैं जी इसको तो खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है, तो क्या कहेंगे सर? इस बात पर रोशनी डालिए फिर थोड़ी सी। जी डॉक्टर दानियाल, यही अलमिया है कि आज लोगों ने बड़ी सक्सेस को सोचा है कि ये बड़ी ब्लेसिंग है। आज बहुत सारे हमारे यहाँ टीवी प्रीचर भी हैं जो प्रॉस्पेरिटी की तालीम देते हुए जो कहते हैं कि अगर ये सारा कुछ, आज हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे बदतरीन लोग जो हैं वो भी मालदार बन गए, लूट कर, डाके डालकर
कत्ल गारत करके तावन लेकर, शायद उनके पास बड़ा सोना और उनके पास बहुत लाखों हो सकते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि आज अंधे को अंधा राह दिखा रहा है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा था, ये खुद तो गड़े की तरफ, ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जहन्नम का वारिस बना रहे हैं। तो लोग क्या करें फिर सर? वो तो कहते हैं जी बरकत है, वो बड़े बड़े नारे मैंने सुने हैं, वो कहते हैं जनाब जैसे मुझे खुदा ने बरकत दे दी है, आप मेरी मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट करें, खुदा आपको भी बरकत दे देगा। तो वो बात तो बाइबल की कर रहे हैं, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो कैसे लोग समझे सारी इस बात को? जी डॉक्टर दानियाल, आपने सही कहा, लेकिन आज वाकया में ही जो आपने कहा अलमिया यही है कि जो पैरोकार हैं वो भी ऐसे ही इन्फ्लुएंस में, उन्हें भी झूठी तसल्लियां, जैसे आपने कहा हननिया के, वो झूठी तसल्ली दे रहा था कि बाइबल आकर तुम्हें लेके नहीं जाएगा। लेकिन आज बहुत सारी जो झूठी तसल्लियों में है, एक दिन इसका अंजाम उन्हें पता लगेगा कि ये झूठी तसल्लियां देने वाले, ये झूठी बरकतें देने वाले जो हैं, झूठी शिफाएं देने वाले जो हैं, ये असल में वो सच्चाई। इसलिए मैं एक वर्स कहना चाहूंगा कलाम मुकद्दस में, जनाब हजूरुल मसीह ने कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज वो लोग जो इस झूठ के बंधन में गिरफ्तार हैं, उन्हें जरूरत है हकीकी और सच्चे लोगों की, और जो बड़े थोड़े हैं, लेकिन जरूर है कि सच्चाई का नरसिंगा फूंका जाए ताकि वो देख सकें कि हक और बातिल क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, खुद नमाई क्या है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा, बताइए, बहुत से लोग जो सच्चाई की निशानदही करते हैं, जो रियाकारी को एक्सपोज करते हैं, जो बाइबल की जो दुरुस्त तालीम है उसकी बात करते हैं, सर उनके जो पैरवी है वो तो कम लोग करते हैं, और बेचारे ग्रुपों का जो है उनकी जुल्म ज़्यादतियों का निशाना भी बनते हैं, और अकेले ही बेचारे रहते हैं और माली मुश्किलात में भी हैं। उनकी ढारस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेशर है उन पर, पादरी साहब, उन पर प्रेशर है कि वो उनकी मानद बन जाए, दूसरों की मानद, जो दुरुस्त सम्मत में चलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा आपकी दलेरी के लिए बड़ा खुश होता हूं, लेकिन आज आपने ऐसी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये बात कही जाए और सच्चाई के लिए लोग खड़े हो जाएं, और उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह ये कहना है कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, तुझे ये सब कुछ जो तू कर रहा है वो दुरुस्त नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं, अगरचे उसका सर कलम हो गया। आज ये इसी तरह से है। अगर कोई सलेमान तासीर की तरह ये कह दे कि हमें कानून के मुताबिक ये करना है, उसे भी अपने खून का अतिया पेश करना पड़ा, चाहे शहबाज भट्टी हो। आपके हाथ जो भी सच बोलेगा, आज बहुत सारे जजेस क्यों नहीं फैसला लेते दानियाल साहब? इसलिए उन्हें डर लगता है, अगर वो सच्चाई का साथ देंगे, झूठे मुकदमे जिन पर बनाए गए हैं उन पर तलवार है, लेकिन किसी को तो कुर्बानी पेश करनी होगी। और इसलिए मैं कहूंगा, सच बोलने वालों को सच और हक की खातिर तैयार होना होगा, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई हो। मुझे भी और दलेरी करनी है ताकि मैं हक को और सच को कह सकूं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही मुदल्लल अंदाज से इन बातों को पहुंचाया है, और मैं इसके साथ सिर्फ ये गुस्ताखी करूंगा शामिल करने की, अगर आप हक की खातिर, रास्तबाजी की खातिर, सच की खातिर, सदाकत की खातिर दुख उठा रहे हैं तो घबराइए नहीं। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो वक्त पर काटेंगे, और अगर दुश्मन आपको सलीब पर भी चढ़ा दे, तारीकी की कुव्वतें जश्न मनाएं, वो कहें कि हमने इसको गिरा दिया है, वो कहें हमने इसका खात्मा कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानते पहला दिन कब्र में गुजर गया, दूसरा दिन कब्र में गुजर गया, लेकिन सच्चाई के अलमबरदारों को कब्रें
अपने अंदर न रख सकी। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जब कटाया गया तो लिखा है खुदा की बादशाहत में वो सबसे बड़े रुतबे पर होगा। इसलिए ऐ मेरे बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया में आप जहां पर हैं, जाती तौर पर मैंने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया सच बोलने की खातिर, और करते रहेंगे। घबराना क्यों है? ये जिंदगी तो थोड़े दिनों की है, उसके बाद अबदी जिंदगी है। इसलिए पाकिस्तान में, इंडिया में जो खादिमुल दीन सच्चाई पर खड़े हैं, हक बात कहते हैं, कभी भी ना डरिए, ना झुकिए, चूंकि यीशु मसीह नासरी आपके साथ है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। ऑन एयर हैं, बात कीजिए। यीशु में आपकी सलामती हो पास साहब। सलाम जनाब, आपकी भी सलामती हो। सर मैं खालिद वसी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी खालिद भाई, बात कीजिए। सर मेरा, क्या बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए? जी क्या बात है, दोबारा बोलिए। बच्चे को पानी का बपतिस्मा देना चाहिए जनाब, आज हमारा मौजू है, और कैसे देना चाहिए? जी आज हमारा मौजू है खालिद भाई, कायदीन की पहचान। तो ये आपका सवाल मैंने लिख लिया है। जब बपतिस्मा पर बात करेंगे तो ज़रूर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे, चूँकि थोड़े वक्त में बात करना मुनासिब नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आज के मौजू के ताल्लुक से कोई बात करना चाहेंगे, कायदीन के ताल्लुक से? अच्छा, बहुत सारे खादिम है पास साहब जो सच्चाई बताते हैं, लेकिन लोग उनको बुरा जानते हैं। और हमारे बहुत सारे खादिम है जो अपने आप को खादिम कहते हैं, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं बताते। बहुत से हमारे गिरजाघरों के अंदर बुत रखे हुए लोगों ने, घरों के अंदर रखे हैं। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी शुक्रिया, वही बात हम पहले भी कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर मैं आज सवाल करता हूं यही जनाब मोहतरम पास्टर परवेज साहब से। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब कोई और बात करना चाहेंगे? परवेज साहब को मेरा सलाम और हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा को बरकत दे और आई लव यू एज टीवी एंड टीम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर साहब जी, उन्होंने कहा झूठे जो खादिम हैं वो भी चर्चों में हैं, वो भी लीडर हैं। तो क्या कहेंगे सर? झूठ और सच की पहचान जो है वो कलाम मुकद्दस से ही है, और बड़ी खूबसूरती से कलाम मुकद्दस ने बताया कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। असल में पहचान जो है, अब लोगों को ये देखना चाहिए कि फल जो है वो, एक दफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आज बार बार जिंदगी की बातें मेरे सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग आगे उनसे बपतिस्मा लेने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि आए सांप के बच्चों किसने जता दिया, आने वाले गजब से भागो, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। सर मैं चाहूंगा कि ये जो आयत आप बयान फरमा रहे हैं, चूंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं, शायद जो दोनों ग्रोह में हैं, दोनों ग्रोह के रहनुमा सुन रहे हैं, आने वाले गजब से भागो, शायद वो जानते नहीं कि आने वाला जो वक्त है वो फैसला कुन वक्त है, खुदा की अदालत का वक्त है। शायद वो इस बात को सुनकर अपनी राह बदल लें। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो जब कहता है आने वाले गजब से भागो, तो क्या गजब होगा वो थोड़ा सा मुख्तसर बताइए, फिर बात आगे बढ़ा दीजिए। जी डॉक्टर दानियाल, मैं आपके क्वेश्चन को ओवर राइड नहीं करना चाहता, लेकिन इस आयत को जरूर पूरा करूंगा। जो अलमसी ने कहा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। लेकिन सवाल की तरफ आते हुए कि आपने कहा आने वाले गजब से भागो, असल में खुदा मोहब्बत ने हमेशा उस गजबे इलाही से बचने के लिए लोगों के लिए राह तैयार की, और ऐसे खादमों को और ऐसे अंबिया को भेजकर ये कहा आने वाले गजब से भागो, जिसका मतलब है कि वो सच्चा आदल मुंसिफ है। एक दिन जब दुनिया की अदालत होगी
और वो लोग जो सच्चाई के कलाम को रद्द करते और सच्चाई के कलाम की और सच्चे नबियों की बात को टाल देते हैं, जैसे आपने यर्मिया का जिक्र किया और उस वक्त हननिया भी है, लेकिन अब लोगों पर थी कि वो यर्मिया की सच्ची बातों की तकलीद करते या वो झूठी तसल्लियों में रहते। और आने वाला गजब जो है वो अदालत है जो रास्ती से होगी, और उस अदालत में कोई बच ना सकेगा अगर कोई तरीकाकार भी किया, चाहे वो उस्ताद होंगे झूठे या झूठे नबी होंगे या उनके पैरोकार होंगे। इसलिए उस गजब से बचने के लिए हकीकी सच्चाई को अपनाना होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ सर, कि जो कायदीन का तरीका है पाको हिंद में मसीही, ख़ास तौर पर जो इंतखाबात होते हैं बिशप साहबान के या दीगर मसीही तंजीमों के, तो आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ और दुनिया भी वाकिफ़ है कि जो बिशप साहबान के इंतखाबात होते हैं तो क्या क्या होता है जी। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी रोशनी डालिए थोड़ी सी, कि जो लोग ऐसे इंतखाबात की सूरत में आते हैं जैसे कि दुनिया के इंतखाबात हैं, और बाज़ हालतों में तो यहाँ तक सुना गया, सबकी बात नहीं, बाज़ हालतों की बात कर रहा हूँ, बाज़ मौक़ों पर लोगों को ख़रीदा गया सर वोट डालने के लिए, तो ये इंतज़ामात तो ऐसे हैं, तो कलाम खुदा क्या कहता है सर इसके बारे में? डॉक्टर दानियाल, बड़ी बदकिस्मती है कि आज बदी की ताकतें, तारीकी की ताकतें और लोग इस जंगल में हवस परस्ती और दौलत के नशे में इस कदर हो गए हैं कि उन्हें इस मर्तबे को हासिल करने के लिए, अगर देखा जाए तो इंतखाब जो है, जो बुलावा जो है, वो तो खुदा की तरफ से है, और इस बुलावे को जो रिकग्नाइज करना है, तस्लीम करना है, वो लोगों का है। लेकिन अब बात ये हो गई है बदकिस्मती से, अगर हम बड़े सगीर की बात करें, पाको हिंद की बात करें, तो कई बरसों पहले ऐसे खुदा तरस बिशप साहबान आए, लेकिन वो वोट खरीद कर नहीं आए। इसीलिए हम देखते हैं उन पैरिशेस में, उन कलीसियाओं में एक बड़ी बेदारी। लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हो गया, और मैं सोचता हूं कि कौमों में, चाहे वो सियासी लीडर थे या मजहबी लीडर थे, मैं सोचता हूं मजहबी लीडरों ने भी इसी तरह से उस सारी मुल्क की सकाफत या उस सारे असर और रसूख को ले लिया और उन्होंने खुदा की बातों को, इलाही बुलावे को भी इन बातों से बदला। और आज जैसे कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, और जिस पर हमें बड़ी दलेरी से ये कहना चाहिए, हम इन सारी बातों की नफी करते हैं, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक खरीदना वोट और बलबोते पर किसी ताकत को हासिल करना, ये खुदा का बुलावा, ये खिदमत का इंतखाब नहीं है। सर एक कॉलर साथ है, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो इस निज़ाम में फिर मुंतखब क़यादत है उसके बारे में क्या करें, उसका आप जवाब दीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो आप लिख लीजिए, जो मुंतखब इस वक्त क़यादत है वोट खरीद कर, उसकी पैरवी करनी चाहिए, उनको कायद मानना चाहिए या नहीं? एक कॉलर हमारे साथ हैं सर, फिर बात करते हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, और टीवी की आवाज़ कम कर दें प्लीज़। जी डॉक्टर दानियाल साहब, मेरी तरफ से आपको सलाम। सलाम जनाब, आपको भी सलाम, बात कीजिए प्लीज़। जी मैं नुमान बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे आज का जो मौजू है उसकी मुनासबत से मैं सवाल करना चाहूँगा कि मैंने पिछले दिनों भी, अगर आपने भी सुनी हो ये खबर, कि मंडी बहाउलदीन में भी क्रिश्चियनों के साथ जो उनको इलाका बदर करने को कहा गया, फिर कसूर में एक आइसक्रीम वाले के साथ जो ज्यादती का उसको निशाना बनाया गया। लेकिन अब एक और वायरल हो रही है खबर कि एक चर्च में भी एक पुलिस वाले ने उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की है, लेकिन कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मजहबी कायदीन हैं, क्या उनके जहनों में, क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी कि जो मसीहियों के साथ इस तरह के जुल्म बर्बियत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या उनके पास इस तरह के, क्या मजहबी कायदीन क्या सिर्फ यही कंसर्न रखते हैं कि हमारे चैनल्स खुल जाएं? और दूसरा, वेयर इज आवर मिनिस्टर? हमारे मिनिस्टर को भी क्या, माइनॉरिटीज के मिनिस्टर को भी नहीं क्या इस खबर का पता होगा कि हमारे क्रिश्चियंस किस हालत में
पाकिस्तान में रह रहे हैं कि 3 और इस तरह के कई वाकयात सियालकोट में देख लें आप, एक लड़की के साथ उसको जबरदस्ती उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया और उसका जैली सर्टिफिकेट बना के उसको पेश किया गया और उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर। क्या ये खबर हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे मजहबी कायदीन तक नहीं पहुंची होगी? हम बस कंसर्न रखते हैं कि ठीक है हमने कर लिया और हम टीवी पे आ जाएं, बस हम थोड़ा सा मौक़िफ़ दें और बस। लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करें? बहुत शुक्रिया, ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इस नुक्ते को उठाया है और मेरा जो शो है ये तर्जमा करके बहुत सी जगहों पर भेजा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि जो इसको तर्जमा करके भेजते हैं वो इन नुमाइंदों को भी दिखाएं जो इस कौम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। बहुत शुक्रिया। नुमान साहब, कोई और बात करना चाहेंगे? सर मैं बस और तो कोई बात नहीं, आपका शो ही बहुत पसंद है मुझे कि हर टॉपिक पे आप बात करते हैं दोहरा हाजरा के, और जो क्रिश्चियनों के लिए आप खास कर जो इस शो को खुदा बहुत बरकत दे, जिंदगी टीवी चैनल को बहुत बरकत दे कि इन्होंने जो सच्चाइयों आपको बयान करने का एक बेड़ा उठाया हुआ है, खुदा इनका साथ दे। बहुत शुक्रिया जनाब। सच बात कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे जब तक दम है, सच्चाई बयान करते रहेंगे उसके फजल से। जनाब मोहतरम पास्टर साहब। जी डॉक्टर दानियाल, आज मैं यूं महसूस करता हूं कि एक बड़े इनकलाब की तरफ आपकी निगाहें आ गई हैं और इस आप ये कह रहे हैं कि मुंतखब क़ियादत को मानना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, ये मैंने सवाल उठाया, उसके बाद फिर ये सवाल करेंगे और इस शो को हम जारी रखेंगे आने वाले हफ्तों में भी। तो पहले ये बात बताइए, ये जो रिश्वत और तरफदारी के साथ क़ियादत मुंतखब होकर आई है, ये बाद में बताइए। पहले उस लड़के ने अभी ये बात की है भाई ने कि मंडी बहावुद्दीन में क्या हुआ सब वाकिफ हैं। इसके अलावा लड़कियां रेप हुई हैं और एक जो आइसक्रीम वाला है उसको मारा गया है कसूर में। कोई मजहबी कायदीन में से नहीं बोला, ना ही सियासी कायदीन में से बोला है और ना ही कोई अमली कदम उठाया गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नमान को रियली अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसी सोच रखना, और मैं सोचता हूं कि जब तक कौम का दर्द या मुल्क का दर्द ना हो तो उस वक्त तक ये बातें नहीं आ सकती। ये हमारे कायदीन के लिए शर्म की बात है कि वो अपनी जगहों पे अपनी पोजीशन को सिक्योर करके, और वो हमेशा उन झूठे नबियों की तरह तसल्ली देते रहे कि बाबल या नबूकदनेस्सर नहीं आएगा। आज भी ऐसे लोग जो सिर्फ एक वक्ती तौर पर, जब तक उनका दौरे हुकूमत या जब तक उनकी ये पोजीशन है, वो ये कर रहे हैं, एक दिन उन्हें खुदा को भी हिसाब देना होगा और वो कौम के सामने भी जवाबदेह हैं। और मैं ये सोचता हूं इंतहाई अफसोस का मुकाम है, ये इंतहाई दुख की बात है कि मसीह बेटियों के साथ, बहनों के साथ और मसीह लोगों के साथ जो ये सलूक है, ये मुकम्मल शहरी होने के बावजूद उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये ज्यादती है और मैं कहूंगा कि मसीह रहनुमाओं को, क्रिश्चियन लीडर्स को जरूर आवाज उठानी चाहिए। अगर वो आज आवाज सर शुक्रिया, आवाज के साथ अमली इक़दाम भी तो होने चाहिए। इसके साथ सर मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये भी बात करें, जो मसीही कायदीन, उन्होंने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनकी तंजीमों के, प्रैक्टिकली तो आप क्या कहेंगे, वो क्या कर रहे हैं? जी हाँ, फिर मैं सोचता हूं कि आज आके इसी पर बात खत्म होती है। ये ज़मीर फरोशी है, ये गैर जिम्मेदारी है, ये ऐसे ही है कि अपनी दुकानदारी की खातर एक कौम का सौदा किया जा रहा है, लोगों को इग्नोर किया जा रहा है जो उनकी पावर है, और एक दिन उन्हें यकीनन ये हिसाब तो देना होगा। एक दिन यकीनन उन्हें हिसाब देना होगा। पास्टर प्रवेश साहब हमारे साथ हैं, एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवेश साहब फिर जारी रखेंगे।
जी खुश आमदीद। हमारा मौजू है आज कायदीन की पहचान। आप ऑन एयर हैं, कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, अब 10 मिनट है, बात कीजिए जल्दी से मौजू के ताल्लुक से प्लीज। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमारी कॉल ली। शुक्रिया, मैं वेलकम। प्रोफेसर का भी बड़ा मशहूर हूँ और आपके टॉपिक के लिए जो लीडर के हिसाब से है, तो मैं थाईलैंड से बात कर रहा हूँ और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि लीडर साहबान की कितनी फुकदान है कि थाईलैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन असाइलम सीकर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जिंदगी और मौत की हालत में है, लेकिन किसी की भी लीडर में ये जुर्त नहीं हुई, ना सियासी में ना मजहबी लीडर में, कि वो आकर यहाँ पर देखें और हमारे क्रिश्चियन लोगों के बारे में जान सकें कि वो किन हालात में हैं। और वो अपने बड़े बड़े चोगे पहनकर तो सब बड़े बड़े सरमन देते हैं, लेकिन किसी को इतना भी नहीं है कि हमारे लोग जहाँ पर मरे होते हैं, डेड बॉडी 5-5 दिन जो हॉस्पिटल में पड़ी रहती है और कोई जनाजा तक पढ़ाने के लिए नहीं होता है। यहाँ तक कि मैंने बजाते खुद 5 जनाजे पढ़ाए हैं थाईलैंड में, और एक ऐसा भी जनाजा था 5 दिन डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रही, लेकिन कोई लीडर था ही नहीं कि जो जनाजा पढ़ा सके। और हमने बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर जाकर डेड बॉडी को दफनाया और यहाँ तक कोई मट्टी डालने के भी नहीं था। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मजहबी रहनुमा, बड़े बड़े बिशप साहबान, बड़े बड़े डॉक्टर, आलम, स्कॉलर जो हैं, वो बड़े कॉलर जो लगाकर तो बैठते हैं और जब मजालस में बैठ बड़ी तकरीरें करते हैं। सियासी रहनुमा जो है वो पार्लियामेंट में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्होंने अपनी कौम के लिए भी कुछ करना है। तो बराए मेहरबानी मैं चाहूंगा कि पास्टर साहब से वो मजीद इस पर रोशनी डालें और उन खुदाम के हवाले से उन लीडरों के बारे में प्लीज बराए मेहरबानी वाजे कीजिए जिनकी बाबत में लिखा हुआ है कि वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं। माजरत के साथ ऐसे अल्फाज मुझे कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लीडर साहबानों के हमारे अंदर जो दुख है, जो दर्द है, उसको हम हमारे सामने है। इसलिए नहीं है कि हम किसी मुखालफत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनके बगैर क्या हैं, वो हमारे लीडर हैं और उनका हक बनता है कि हमें दुख और मुसीबतों में जानना और हमारी मुश्किलात को पहचानना। बहुत शुक्रिया, आपने दर्द में ये बातें की हैं, दुख में ये बातें की हैं। अगर रहनुमाओं ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो ये बातें आज ना होती। यही वो लोग हैं, यही वो कलीसिया के अफराद हैं जिनके नाम पर करोड़ों डॉलर्स और यूरो और दीगर करेंसी में नाम लूं तो बहुत से नाम आ जाएंगे। इन्हीं के नाम पे ये पैसा उन लोगों को भेजा जाता है जिनको दुनिया ये कहती है कि ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये कलीसिया के नुमाइंदे हैं। यही तो लीडर हैं जनाब, इनको पैसा दीजिए, इनकी मदद कीजिए, ये इनके ठेकेदार हैं। और आज मैं उन ठेकेदारों से पूछता हूं, मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद मुखालफतें तो बहुत सी होनी है और मैं ना कभी डरता था, ना डरता हूं और ना डरूंगा। यीशु के फजल से उसने हमें दिलेरी दे रखी है, उसका करम है, उसका फजल है। कोई रूहानी सुपरमैन नहीं, मैं कहता आप ही की तरह एक शख्स हूं, लेकिन उसका फजल है कि हक बात अगर ना कहेंगे तो याद रखिए तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। पास्टर जाशुआ साहब बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रोएस साहब, आप तो सीनियर हैं हमारे, कौन कब कहां से इस्लाह की जाएगी और कौन करेगा? मोहतरम बचपन से देख रहे हैं, करोड़ों डॉलर जाते हैं सर, दीगर करेंसी जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी हैं। मेरी फ्रस्ट्रेशन ये है सर, मैं जब सच्चाई का बयान करता हूं वो कहते हैं इसको कॉर्नर कर दो, ये झूठ बोलता है। सच्चाई ये है जो लोगों ने आपके सामने पहुंचाई है। अगर आज भी कोई शख्स आंखें बंद कर ले, इसको झूठ साबित करने की कोशिश करे, तो वो याद रखे एक दिन यीशु के आगे खड़े होंगे और वो पूछेगा जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या किया है। पास्टर साहब हमारे पास 5 मिनट हैं, आपसे दरखास्त है, शो को जारी रखेंगे यहीं से, लेकिन मैं चाहूंगा 4 मिनट में आप बताइए, ये दुनिया की नजर में ट्रस्टवर्दी हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चों के पास दूध नहीं है, बीमारों के पास दवाई नहीं है,
खानदानों के पास खाने के लिए नहीं है, लड़कियां रेप हो रही हैं, उनके मुकदमे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वहां पर मसीही नौजवान को जला दिया गया है, कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। अभी हाल ही में पिछले दिनों एक मसीही नौजवान को उसको लटकाकर मारा गया है, कोई नहीं बोला। उनके नाम पर पैसे खाना जायज है, उनके लिए अमली कदम उठाना, डर और खौफ में चुप रहना, क्या यही की आदत है सर? आप बताइए, आप एक हमारे सीनियर रहनुमा हैं। जी डॉक्टर दानियाल, आज मैं ये सोचता हूं कि एक इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे कॉलर्स ने भी अपने दुख और अपनी आहों को और अपने गिले और अपने शिकवे को, जो बिल्कुल दुरुस्त और जायज है, और मैं ये सोचता हूं कि आप जो कह रहे हो, हर मसीह का और हर शख्स का जिनके ये कायद बने हुए हैं, उनका ये हक पहुंचता है कि वो इनसे पूछें, काश के इनसे हिसाब लेने वाला कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी होती। और आज आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो लोग जो इनको ग्रांट करते हैं, काश के उन तक आवाज हम पहुंचा सके कि ये सारा गोरख धंधा जो इतनी देर से चल रहा है, इसके लिए जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक शफाफियत नहीं होगी, और ये फंड्स जो हैं वो रोके जाएं और इनके जमीरों को झंझोड़ा जाए। और आज मैं ये कहूंगा, पास्टर साहब, आपके पास सिर्फ 50 सेकंड है और फिर मुझे इख्तिताम करना है। और मैं इन 50 सेकंड्स में यही कहूंगा, डॉक्टर दानियाल, काश के इनके जमीरों को झंझोड़ने के लिए हमारी आवाज बुलंद होती रहे। और मेरा ये यकीन है, अगर ये आवाज इनको एक दिन जरूर होश में लाएगी, ताकि वो जान सकें कि कोई उठ खड़ा हुआ है जो सच्चाई को बयान करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यहीं से हम जारी रखेंगे कायदीन की पहचान। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, कॉलर्स के लिए शुक्रिया, मेरी टीम जो मेरे साथ है उनके लिए शुक्रिया, मेरे लिए जो दुआएं करते हैं उनके लिए शुक्रिया, जो मशवराजात देते हैं उनके लिए शुक्रिया, जो मुखालफीन और हासदीन हैं आपके लिए भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आखिर में एक शेर आपकी नजर करता हूं। ये जो लोग हैं जो कायदीन होने का दावा करते हैं, तमाम लोग पहले इस बात को देख लिया करें, सोच लिया करें। किसी शायर ने कहा था, आया था घर संवारने एहसान कर गया, आया था घर संवारने एहसान कर गया, बर्बादियों का और भी सामान कर गया। ऐसे रहनुमा जो बर्बादियों की तरफ लेकर जा रहे हैं, कलाम खुदा की रोशनी में आने वाले दिनों में सीखेंगे किस तरह से हम हेल्दी कायदीन की बात, सेहतमंदाना क़यादत की बात करेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से पहचान की बातें, निशानियां भी, और बरकत पाएंगे। और दुआ यही है, किसी भी लम्हे कोई भी शख्स बदल सकता है, वो मैं हूं या आप हैं। अगर कोई कायदीन की वो तरतीब जो खुदा ने दी है उस पर पूरा नहीं उतरता, तो आइए वापस लौटें खुदा के कलाम की तरफ, बाबरकत हो जाएं और बाबरकत बनाते चले जाएं। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी। आपका मेजबान दानियाल।